Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi. Here I am going to take the topic of basic building block of translation, and that is tenses. So here we begin with the tenses. Tenses means all about time and action. Which action we are performing in which time, that is all about tenses. And tenses are of three types: present, past and future. So present tense is the tense in which we are living this time. If we are doing the action right now, that is present tense. If we have done action at some time in past, that is past tense. And if we do the next action next to, and the action which we will do next to this, that is future tense. All right, so each part of tense has four more parts. They are like present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. All right, and similarly past also has the four parts: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Similarly future also has four parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, so we will begin with the present indefinite. Which type of sentences comes under present indefinite? They are habit, to talk of nature, routine, universal truth, and which happens at regular interval of time. Means if we are talking about our habit or our routine or anyone's routine which happens regularly, that is प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, मीन्स वो काम जो होते हैं, जो हमारी आदत होती है और जो हमारा रूटीन है, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर आते हैं. तो इस तरह की 5 कैटेगरीज को याद रखना और इस तरह से ट्रांसलेशन करना, इट बिकम्स वेरी टफ. सो सिंपल जो ट्रांसलेशन टेक्निक है एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर आते हैं. मीन्स जो सेंटेंसेस इस तरह से एंड होंगे वो सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगे और उनका एक ही रूल होगा उनको ट्रांसलेशन करने का. वो होगा, लेट मी क्लियर यू what is subject and what is verb. But as I earlier told that tense is all about time and action. Action मतलब कौन सा काम हम कर रहे हैं वो action होता है. मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स verb. And there are 3 forms of verb, we all know. First form, second form and third form. First form is that is in present and the other 2 are taken in past. Okay, so सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इंसान काम कर रहा है या जो चीज काम कर रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और जो काम वो कर रहा है वो हमारी क्रिया यानी कि वर्ब होती है. और उसके अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. ओके, तो हम चलेंगे. तो रूल कहता है सिंगुलर के लिए अलग रूल होता है और प्लूरल के लिए अलग रूल होता है. तो सिंगुलर के साथ रूल क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो काम कर रहा है पहले वो आएगा. फिर सेकंड में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की, वो फॉर्म आएगी, यानी कि कौन सा काम हो रहा है, क्रिया की पहली फॉर्म आएगी. उसके बाद लास्ट में जो कुछ भी बचेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट में आएगा. ओके, वो आएगा लास्ट में जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में. तो सिंगुलर के साथ ही, शी, इट आता है और प्लूरल में हमारा आई, वी, यू, दे इंक्लूड होता है. ऑल्दो I is singular, but in grammar I is not taken as singular, I is taken as plural. So we will consider all the rules of plural with I, means we have to take it, we have not to consider it. So it's a compulsion because it's a rule, so it will be followed with I. All the rules of plural will be followed with I. Okay, so the rule says that subject के साथ verb की, subject के बाद verb की first form आएगी, उसके बाद object आएगा. सीक्वेंस इसी तरह से फॉलो होगा जैसे मैंने लिखा हुआ है. ऑलराइट, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. इसी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. अब देखिए सिंगुलर के साथ ही, शी और इट, अगर हम कोई एक नाम ले रहे हैं तो भी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस लगाना होगा. ये रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म आती है. प्लूरल के साथ वर्ब की एस और ई एस फॉर्म नहीं आती है. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है, उसके अलावा किसी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है. और सिर्फ सिंगुलर के साथ एस और ई एस ऐड होता है. ओके, सो लेट्स बिगिन. रूटीन, हैबिट, नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ और जो कुछ भी कुछ टाइम बाद रिपीट होता है
उसके जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ता है, ती है और ते हैं से एंड होते हैं, यानी कि ता है और ती है ते हैं से खत्म होते हैं हमारे, ठीक है। तो सारे सेंटेंसेस को फॉलो करना, ट्रांसलेट करने का एक ही रूल होगा, वो है, चलो पहले हम रूटीन के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरा रूटीन है कि मैं रोज सुबह स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो सब कौन जाता है स्कूल, सब्जेक्ट कौन है, मैं। जो स्कूल जाता है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। और काम कौन सा हो रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है, स्कूल जाना, स्कूल जाती हूँ, ठीक है, जाती हूँ, सॉरी ओनली जाती हूँ इज द वर्ब, ओके। सो ट्रांसलेशन इस तरह से किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद आएगा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, ऑफ कोर्स गो ही होगी, गो टू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, टू स्कूल एवरी मॉर्निंग इज टेकन एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं हैबिट के जो सेंटेंस होते हैं वो भी इसी तरह से एंड होते हैं, ता है, ती है, ते हैं के साथ। सो मेरी हैबिट है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैं, आई, उठती हूँ इज वर्ब हियर, सो गेट अप। we will not use s and es because we are using I, so look at here that with I we cannot use s and es, we have to use only the first form of verb, that's it, okay. So I get up early in the morning, this is all taken as object. उसके बाद हम आते हैं नेचर पे। तो नेचर क्या है, किसी का नेचर है, किसी की प्रकृति कैसी है वो नेचर होता है। तो किसी की प्रकृति है कि कोई लड़की है वो बहुत सुंदर दिखती है, तो ये उसका नेचर है। सो व्हाट इज सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या है वर्ब, क्या है यहाँ पर, दिखना, वो कैसी दिखती है वो यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो दिखती है यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ देखिए हमने एस ई ऐड किया है क्योंकि ये रूल है कि शी के साथ वर्ब की एस और ई एस फॉर्म आती है, ठीक है। तो हमने लुक के साथ, लुक वर्ब थी, हमने उसके साथ एस ऐड कर दिया। सो हाउ डज शी लुक ब्यूटीफुल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर। नेक्स्ट कम टू यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हमारा सार्वभौमिक सत्य होता है, यानी कि ब्रह्मांड में जो चीज हो ही रही है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एंड पृथ्वी सूरज के चक्कर, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो कौन लगाता है चक्कर, सब्जेक्ट इज पृथ्वी, सब्जेक्ट हियर, एंड चक्कर लगाना इज व्हाट, वर्ब हियर। सो अर्थ subject plus verb first form and with s and es because earth is singular, earth singular है तो उसके साथ s या es लगेगा, and around the sun is taken as object here, so earth revolves around the sun। उसके बाद रिपीटेशन, जैसे कोई काम बार बार कुछ टाइम के बाद होता है, किसी इंटरवल के बाद होता है, ये रूटीन नहीं होता, तो जैसे कुछ भी काम एक टाइम के बाद होता है वो रिपीटेशन होता है। जैसे वह हर महीने मंदिर जाता है, शी, हाँ, he is taken for masculine and she is taken for feminine, so means for male he will be used and for female she will be used। so he goes, वन इसमें वर्ब क्या है, गो, जाना वर्ब है, तो s and es form will be used according to the rule because with singular s and es form of the verb comes, so he goes to temple every day, every month, okay। so this is all about present indefinite tense, this is all about the affirmative sentences of present indefinite tense। next we will discuss the negative sentences of present indefinite and the rule is followed like negative sentence means वो सेंटेंस जिनमें किसी भी काम के ना होने की बात हो रही हो, कि ये काम हम नहीं करते हैं, मैं खाना नहीं खाती, मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठती, मैं मंदिर, मैं कोई भी काम मैं नहीं करती, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ओके। सो रूल इस तरह से फॉलो होता है कि सिंगुलर मतलब वही, फिर ही शी इट, और प्लूरल मतलब आई यू वी और दे, ठीक है। सिंगुलर के साथ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट,
लगता है आता है, और डज नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. नोट डाउन दैट डू, डज नॉट एंड डू नॉट आर the helping verbs here. What are they? Helping verbs here, and they are added before the verb. does not और do not यहाँ पे helping verb है जो कि verb से पहले ऐड की जाती है. ओके, so the translation goes like, मैं रोज सुबह स्कूल नहीं जाती. ठीक है, तो कौन नहीं जाता स्कूल? मैं नहीं जाती. तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या आता है? प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट आएगा. डू नॉट गो, गो के फिर डू. अब देखिए आप कि डज नॉट के साथ एस और ई एस नहीं आता है, सिर्फ ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है. डू और डज के साथ एस और ई एस फॉर्म यूज नहीं होती है. तो अगर चाहे वैसे तो हम यहाँ पे प्लूरल का बना रहे हैं, पर जिस केस में हम सिंगुलर का भी बना रहे हैं उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाया है. ओके, तो जस्ट लुक, आई डू नॉट एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. उसके बाद हैबिट पे आते हैं. हैबिट है मैं रोज सुबह जल्दी नहीं उठती. आई डू, उस आई के साथ डू नॉट यूज होगा बिकॉज प्लूरल है. एंड व्हाट इज द वर्ब हियर? वर्ब इज गेट अप. आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, उसके बाद नेचर है, किसी का नेचर है वह सुंदर नहीं दिखती, तो शी आएगा. और शी क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है लुक, तो शी डज नॉट लुक ब्यूटीफुल. एस और ई एस यूज नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ अफर्मेटिव के साथ होता है यूज, एज आई टोल्ड अर्लियर. यूनिवर्सल ट्रूथ है सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता. तो कौन नहीं लगाता? सन. सन इसमें सिंगुलर है. सन डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज आता है, डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ओके, रिवॉल्व यहाँ पर चक्कर लगाने को रिवॉल्व कहा जाता है. रिवॉल्व यहाँ पे वर्ब है. एंड उसके बाद कोई काम रिपीट होता है. वह हर महीने शॉपिंग नहीं जाती है, नहीं जाते हैं. ठीक है, तो सॉरी वह नहीं, वे हर महीने शॉपिंग नहीं जाते हैं. सो दे डू नॉट गो फॉर शॉपिंग एवरी मंथ. पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट आएगा क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट आएगा. एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं होगा. ठीक है, गो फॉर शॉपिंग एवरी मंथ. So this is all about the negative sentences of present indefinite. Next we will discuss the negative interrogative and the WH family of the present indefinite. So keep watching Learn English with Pallavi. Thank you.